क्योंकि बहुत लोगों के ये सवाल होते हैं कि हमें किस तरह का चेंबर ज्वाइन करना है, हमें दिल्ली आना है कि नहीं आना है. बट व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? व्हाई वाज दिस द चॉइस फॉर यू? The biggest litigation space in India is Delhi at the moment. So that's why I took that plunge. I will not suggest कि आप दिल्ली ही आइए. ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ से हैं वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है. इस प्रोफेशन में अगर और कुछ नहीं है तो सिर्फ नेटवर्किंग है. नेटवर्किंग किसे कहते हैं और वो कैसे होती है? आप कैसे नेटवर्क करते हैं? आपने आज तक कैसे नेटवर्क किया? आपने गॉडफादर तो देखी ही होगी. नहीं, मैंने नहीं देखी है. ओ माय गॉड, यू मस्ट. उसमें एक गॉडफादर के लॉयर होते हैं, पर्सनल लॉयर, टॉम हेगन. ओके, ही इज ऑलवेज दिस वॉइस ऑफ रीजन एंड लॉजिक इन द फैमिली. दैट इज यू टू योर क्लाइंट. ठीक है, अब वो चाहे कितने भी बड़े बड़े अजीब अजीब आइडियाज आपको दे दे, यू हैव टू पुल देम डाउन एंड बी लाइक, बॉस ऐसा नहीं हो सकता है. So this is one mistake. Don't hide the bad news from your right. client. Hello and welcome to another episode of Law Varta. This is our first episode for 2025. Today we have Mona Lisa Kosaria, who is 10 years into the profession and now a partner designate at Luthra & Luthra law offices. Hello, Mona Lisa. Thank you so much for joining us. Hello everyone. Thank you for having me here, Shatunjay. Just to kick it off, would you like to introduce yourself, mainly about your education and where you are now in the profession? Okay. So I'm an advocate on record, as you know, and I'm 10 years into the profession. I'm a dispute resolution specialist. So I've been litigating through and through for 10 years in various chambers, various firms, and now I'm a partner designate in Luthra & Luthra. Very recently, that's also a new year news for me and for the firm. So that's pretty much it. With respect to my education, it's a very normal trajectory for lawyers in India. One day I was learning ABCD. Next thing I'm learning theorems and chemical kinetics. And the next day I'm discussing how much will it cost a company to pay for a thumb in a canned soda. So that's pretty much it. Not planned. Yeah. So that's sweet. And you want to just take us through your journey in this profession. So after you graduated in 2014 Yes. from NUJS. NUJS, Kolkata. Yes, Calcutta. So then thereafter, what was your trajectory like? How did So after graduation, I joined a chamber in Delhi. So I started off with litigation and I wanted to try different workplaces and different practice areas as well. So, you know, there's a buffet of work available for all of us and we need to taste everything to know what we really like. Yeah. So after chamber, I went into NALSA, which is National Legal Aids Association, the topmost legal aid body in the country, which was headed by Justice Asha Menon then. Yeah, so it was a fabulous opportunity. And so it was wonderful learning about pro bono work and a lot of... I did some work on human trafficking also while I was there. Interestingly, I was the first legal researcher there. Oh. Yes. So And this was a full-time post or? It was a full-time post. Yes. And as a first legal researcher, I got the opportunity to also set up their paralegal diaries and volunteer diaries, which is today used nationwide. Oh, and what's it like? What is a paralegal diary? So, you know how you have paralegal volunteers across India, right? You help people who need legal aid to give them information about the programs that are available, how you can get legal aid, who to approach, what all to do. And to keep a tab of everything, it was difficult. There was no system to keep a tab of it. It's not digital yet, to my understanding. Hopefully that will also happen. But at that time, we had a physical system in place. Correct. Understood. So this is your paralegal diary and volunteer diary. Correct. And then thereafter, Nalsa ke baad? So, Nalsa ke baad, I did Election Commission of India. I was a legal consultant there as well. Again, one of the first. Yes. So, and then ever since I have been in litigation chambers and boutique law firms, so doing dispute resolution through and through. Even when I was in ECI, wahan pe bhi, I was doing litigation work. So, yes, that's pretty much it. You also did an LLM sometime. Oh, yes, which is in 2016. I graduated in 2016 from NLU Delhi. So I did a master's from NLU Delhi in public law, which helped me cement the idea of what I want to do in future. Yeah. And just generally, many people just ask
कि LLM करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए if you want to do litigation? One should really try what they want to try. It's far more important to be happy than to be right. तो अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद लग रहा है कि आपको LLM करना चाहिए फॉर व्हाटएवर रीजंस, आपको एकेडमिक्स में जानी है या आपको पॉलिसी में जाना है या आपको लिटिगेशन भी करना है, बट इफ यू थिंक LLM is right for you, then I suggest please go ahead and do it. Yeah. So after LLM, you said after or before you said that you're in NALSA, Election Commission, and thereafter litigation chambers. Litigation chambers में आपने कितने chambers के साथ काम किया? Two, both are small boutique firms. छोटे फर्म्स हैं, मतलब आप अगर स्मॉल फर्म में काम करते हैं तो वो आपको चेम्बर वाली फीलिंग ही देती है, तो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट चेम्बर्स, बट वो है सारे फर्म्स ही, राइट? आप समटाइम्स इट वाज माय अंडरस्टैंडिंग कि आप बड़ा फर्म ज्वाइन करेंगे तो आपको उतना एक्सपोजर शायद डायरेक्टली ना मिले। आप छोटी जगहों में कम लोग होते हैं, 3 लोग हैं, उसमें से तीनों को कोर्ट जाना ही है, ऐसा नहीं कि 10 की टीम है और 3 लोग जा सकते हैं, देयर इज एन ऑप्शन, तो दैट इज व्हाई आई प्रेफर्ड अ स्मॉलर chamber. So 2 chambers and now here I am. And was that the correct decision? Did you actually live that experience? आपको लगा कि ज़्यादा exposure मिला? Yes, definitely. बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिला। डे 1 से ही आपको फेंक देते हैं, जाओ जंगल में, करो जो करना है, हंट फॉर योरसेल्फ, सी फॉर योरसेल्फ, लुक आउट फॉर योरसेल्फ। सो दैट एक्सपीरियंस रियली हेल्प्स। आप जूनियर लेवल में बड़े फर्म्स में आपको इतना एक्सपोज़र नहीं मिलेगा जितना आपको छोटे चेम्बर्स में मिलेगा, चेम्बर में या फर्म में, राइट? क्योंकि पार्टनर्स के पास भी बहुत तरीके के काम होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज उतने नहीं होते, ना ही उतना टाइम होता है, तो आपको खुद सब समझना है, खुद सब करना है, एंड ऑब्वियसली दे आर देयर टू हेल्प यू, बट इट्स यू फॉर योरसेल्फ। And what kind of work did you do? मतलब इन दोनों boutique firms में subject areas same थे या अलग-अलग थे? थोड़ा डिफरेंस था। फर्स्ट फर्म में जहाँ मैं थी वहाँ पे सर्विस मैटर्स काफ़ी थे, वहाँ पे एनजीटी मैटर्स काफ़ी थे, डीआरटी मैटर्स बहुत थे, बट अगेन वो एक बेसिस बन गया समझने के लिए कि कमर्शियल केसेस कैसे डील होते हैं, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड ऑल द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दैट यू टेक एज अ लीगल काउंसिल टू एनी firm, right? And then when I moved to the next firm, वहाँ पे majorly again commercial cases ही थे, बट थोड़ा डिफरेंस था। एनसीएलटी एनक्लेड ज़्यादा थे, पीएमएलए ज़्यादा थे, माइनिंग ज़्यादा थी, तो टैक्स मैटर्स काफ़ी थे, तो थोड़ा डिफरेंस था सब्जेक्ट मैटर में, बट ब्रॉड अम्ब्रेला सेम ही था, कॉमर्स। And that's great actually क्योंकि और कितने-कितने साल आपने इन दोनों firms में लगाया? फर्स्ट फर्म में रफली 2 years or 1.5 years I would say, and the next one 6-7 years. तो दिस इज़ एक्चुअली ग्रेट क्योंकि बहुत लोगों के ये सवाल होते हैं कि हम लोग कैसे डिसाइड करें कि हमें किस तरह का चेंबर जॉइन करना है, हमें दिल्ली आना है कि नहीं आना है। दिल्ली आना है तो फिर फाइलिंग चेंबर, सीनियर एडवोकेट, दिस दैट, बुटीक फर्म, जनरल फर्म जो सब कुछ करती है या एक पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ केसेस करती है। आपने कैसे डिसाइड किया? मतलब ऑब्वियसली द आंसर विल नॉट बी अ वन साइज फिट्स ऑल, बट व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? आपके लिए ये क्यों, व्हाई वाज दिस द चॉइस फॉर यू? माइन वॉज अ वेरी पेक्यूलर सिचुएशन। मैं जिस जगह से हूँ, मैं वहाँ पली बड़ी भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए वहाँ जाना वॉज ऑल्सो नेवर एन ऑप्शन। व्हाट इज दैट प्लेस? सो आई हैव लिव्ड इन ओडिशा, बट मेरा होम टाउन इज इन छत्तीसगढ़, एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कैलकाटा। हाँ, तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे आई एम लाइक रूटेड। ऐसा नहीं था कि अच्छा ये घर वापस जाने, घर वापसी वॉज नॉट देयर फॉर मी। सो दिल्ली सीम लाइक एन ऑब्वियस चॉइस कि अच्छे खासे चेम्बर्स हैं, आपका ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, बट द बिगेस्ट लिटिगेशन स्पेस इन इंडिया इज दिल्ली एट द मोमेंट, राइट? सो दैट्स व्हाई आई टुक दैट प्लंज। बट कमिंग अगेन टू द पॉइंट दैट यू सेड कि वन साइज डजंट फिट ऑल, राइट? सो अगर कोई रीसेंट ग्रेजुएट है और उन्हें लगता है कि हमें लिटिगेशन ही करनी है, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप दिल्ली ही आइए। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ से हैं वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे आप, लाइक आई सेड, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, ओडिशा, सो दैट बेल्ट इज़ वेरी रिच इन आई वुड से रिसोर्सेज, राइट? सो देयर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लॉट ऑफ प्लांट्स। तो अगर मुझे वहाँ रूट होना होता तो आई कुड हैव फाउंड माई वर्क देयर, बट इट वाज अ वेरी पर्सनल चॉइस। एंड दिल्ली आने के बाद भी मतलब ये जो चॉइसेस हैं कि भाई आपने जैसे सीनियर एडवोकेट के साथ नहीं आपने काम किया,
ये सब थॉट्स आए थे कि भाई कहाँ जाऊँ मैं, सीनियर के पास, फाइलिंग ऑफिस, आर्ग्यूइंग काउंसिल, ये सब कैसे नेविगेट किया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली बहुत बार ध्यान आया कि किसी बड़े सीनियर ऑफिस के चेंबर में चले जाते हैं, शायद ज़्यादा सीखने को मिले, एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा सीखने को मिलता, बहुत कुछ बहुत डिफरेंट सीखने को मिलता। बट जिस तरीके का काम मैं कर रही थी, मुझे ऑलरेडी फाइलिंग से लेके, ब्रीफिंग से लेके, ड्राफ्टिंग से लेके सब कुछ करने को मिल रहा था। अपीयरेंस एवरीथिंग, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी मिल रहे थे, बहुत बड़े-बड़े सीनियर्स को भी ब्रीफ करने को मिल रहा था। तो आई वाज़ हैप्पी एंड कंटेंट विथ व्हाट आई वाज़ डूइंग। सो डाउट्स हमेशा ही रहते हैं। हर 6 महीने में लगता है कि क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? बट आई थिंक इट्स फाइन। आई थिंक इफ यू हैव मेड अप योर माइंड टू डू समथिंग, इट्स ओके टू हैव सम डाउट। 6-7 साल आपने क्योंकि दूसरी फर्म में लगाए, तो 6-7 साल में तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ काफ़ी बार ये थॉट आया होगा क्योंकि यूजुअली जो आप सुनते हो इस इंडस्ट्री में, वो सुनते हो कि अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो तो 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल के बाद चलो मूव ऑन। तो व्हेन डिड यू मूव ऑन टू बिकम एन इंडिपेंडेंट काउंसिल? So again, when you hear one is an independent counsel, what does it mean? It basically means कि आप अपने matters खुद handle करें without any supervision. गलतियां भी आप भी कर रहे हो, rewards भी आपके ही हैं. या फिर यू हैव कंट्रोल ओवर योर ओन टाइम? That too, but it starts with handling everything on a matter by yourself, right? So that I've been doing since day one. So since I came into the profession, I have taken up matters. Don't ask about the fee. Don't ask about how I handle them. But yes, आप छोटे मोटे मैटर स्टार्टिंग से ही करते रहते हैं. बट येस, देयर केम अ पॉइंट इन लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ, वेयर आई फेल्ट अब आई वांट टू गो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, एंड मुझे खुद का अपना थोड़ा ट्राई करना है, लेट्स सी कर पाते हैं कि नहीं, बिजनेस डिसीजंस भी आपके, लीगल डिसीजंस भी आपके, राइट? सो आई डिड दैट फॉर गुड 3 years and it was quite helpful. It gives you a different perspective altogether. कभी-कभी आप किसी के चेंबर में होते हैं, आपको लगता है हमारा बॉस फालतू में हम पे चिल्ला रहा है, हमारा बॉस फालतू में हमसे काम करवा रहा है, बट व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड यू रियलाइज कि वो ऐसा क्यों करते हैं। बिकॉज़ अ लॉट इज़ एट स्टेक एंड या एग्जैक्टली। पहली बार क्लाइंट आ जाता है तो किसी के पास भी जब फर्स्ट केस आता है, तो पहला थॉट लॉयर के दिमाग में आता है, एम आई गुड इनफ टू इवन हैंडल दिस केस? ये मेरे पास क्यों आ गया है? पहली बात तो शुड आई टेल द क्लाइंट कि दिस इज़ माय फर्स्ट केस? सो आप सोच लो, मैंने आज तक इट्स लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर हू हैज़ नेवर डन अ सर्जरी बिफोर। तो वो कैसे नेविगेट किया? मेरा जो पहला केस था वो अभी तक प्रो बोनो है। वो 10 साल से हम प्रो बोनो ही कर रहे हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली ही केम टू मी। जब वो आए थे, ही वाज़ आल्सो नॉट दैट वेरी टू डू, एंड मैंने उनको बोला था जब आपका केस हो जाएगा तब आप मुझे पैसे दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मेरी जो भी 10-15 हज़ार सैलरी आ रही थी, तो आई वाज़ लाइक कोई बात नहीं। बट देन विद टाइम यू रियलाइज़ वो क्लाइंट्स की भी आपको ज़रूरत होती है। जो फर्स्ट क्लाइंट्स होते हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, ये अभी-अभी बने वकील बट कर लेंगे, राइट? सो आपको वो ट्रस्ट रीपे करना पड़ेगा इन सम वे और द अदर। ऐसा भी हो सकता है सम क्लाइंट्स में से ultimately pay you your fee with time, right? And it's up to you whether you want to take it up or not. Like my client, he offered me money, but I said, no, you have given me trust. I don't need your money now, right? But with time, with experience, you can charge more, right? I've done cases for 20,000 also, and like 10,000 also sometimes. वो आपके पर्सनल इक्वेशन पे डिपेंड करता है, बट व्हेन यू आर यंग आई विल डेफिनेटली से अपना इतना टाइम एक्सपेंड मत करो समझने के लिए कितनी फी चार्ज करनी है, कितना नहीं करना है, वो आप समझ जाओगे विद टाइम। स्टार्टिंग में आप बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप 10 केस ले लें और आपको 10 नहीं हो पा रहे हैं। आप 2 केस लीजिए, आप 4 केस लीजिए, भले ही आप फी कम चार्ज करिए, बट डू जस्टिस टू इट। दैट इज हाउ यू लर्न एंड दैट इज हाउ यू विल ग्रो। करेक्ट है, क्योंकि पहले जितने भी आप पहले 3-4 केस करेंगे उसमें आपको द अमाउंट ऑफ रीडिंग, द अमाउंट ऑफ फिगरिंग आउट प्रोसीजर बहुत टाइम लगेगा। हाउ मेनी ऑफ दीज फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स, आपने बताया कि पहला जो क्लाइंट है वो तो अभी तक चल रहे हैं, यस। सो हाउ मेनी ऑफ दीज फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स हैव सस्टेन्ड अभी तक? थैंकफुली नॉट अ लॉट, बिकॉज उनके मैटर्स खत्म हो गए हैं वेरी रेयर। हैप्पीली, यस। बट अनफॉर्चुनेटली दिस पर्सन्स मैटर इज स्टिल गोइंग ऑन इन डिफरेंट डायरेक्शन। जरूरी नहीं है जो पहले चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, बट हाँ, कुछ हैं जो चल रहे हैं काफी लंबे टाइम से। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वर योर एरियाज ऑफ वर्क
the same as what you were doing in your earlier two firms? So one benefit of going independent is you can pick what you don't want to do. So जब आप चेम्बर में होते हो कभी कभी you take up matters because of some personal equations of your boss or whatever, जिसमें आप जैसे for me personally divorce matters, child custody matters, I get a little I distance myself from those matters now as independent counsel. But not to say कि वो matters अच्छे नहीं होते. For me personally, I don't want to do them, right? So that way, I have taken some conscious decisions कि I would like to do commercial matters only, and until unless कुछ बहुत personally there's a reference who says कि नहीं please कर दो, then I will do it. So that's pretty much it. And what areas of work are you Primarily do, yes. Commercial disputes. So I stay commercial disputes and arbitrations. I told you before, I'm interested in doing new age matters as well. Now when you say there's a lot of AI related regulations, lot of tech regulations, so that's again upcoming and I'm trying to take it up. But uske pehle bhi I was doing I would say mining matters or election matters or gaming related matters, PMLA matters, tax matters. So it's pretty much, I would say, it's been the same umbrella. Yeah. Ah. And so election and gaming is something you mentioned. Just for the audience, election law किसे कहते हैं या gaming law किसे कहते हैं? इलेक्शन लॉ बहुत सिंपल है, रिलेटेड टू इलेक्शंस. ठीक है, इलेक्शंस हमारे देश में बहुत बड़ा त्योहार है. ठीक है, अब उसके पहले और उसके बाद एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस बहुत कुछ होता है. तो आपको इलेक्शन के पहले भी बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने होते हैं एज अ पॉलिटिशियन और एज अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट टू बिकम कैंडिडेट. आप एमएलए के लिए खड़े हो रहे हो, आप एमपी के लिए खड़े हो रहे हो, आप पंचायत के लिए भी खड़े हो रहे हो. देयर इज लॉट ऑफ कंप्लायंसेस दैट यू हैव टू डू, या एज अ पॉलिटिकल पार्टी एज वेल. तो वो एक प्री इलेक्शन काम भी होता है और पोस्ट इलेक्शन तो फिर लिटिगेशन डिस्प्यूट्स आ ही जाते हैं कि ये गलत तरीके से खड़े हुए हैं या इन्होंने कुछ गलत काम किए हैं इसलिए इनको ज्यादा वोट्स मिले हैं या ईवीएम में कुछ लफड़ा है. सो ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली व्हाट इलेक्शन लॉ इज अबाउट, राइट? And so your clients mainly or primarily are politicians and political parties. Yes. And ये जो cases हैं फिर this is advisory or is it litigation or both? It's a mix of both. I would say it's 50-50 because आप advisory भी when someone is going and filing their form, election के पहले आपको form nomination form भरना होता है. अब nomination form में क्या भरना है, क्या आप avoid कर सकते हैं अगर आपको avoid करना है, not to skirt the law, but आपको कितना allowed है leeway, वो आपको advise करना पड़ेगा अपने clients को, right? who are basically politicians. एंड फिर इलेक्शन के बाद तो इलेक्शन पिटिशंस हो गए. अगर फॉर वट एवर रीजन्स आपने कम मार्जिन या ज़्यादा मार्जिन किसी भी मार्जिन से आप केस हार गए या किसी रीजन से आपका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो ये सब आपको कोर्ट जाना पड़ता है फिर इन चीज़ों के लिए. सो नाउ दैट कम्स इन द लिटिगेशन. Litigation. And which court do you go to? कहाँ जाते हो? हाई कोर्ट. High court, always. It's an election petition that you file always in the high court. And yes. And what about gaming law? मतलब gaming law किसे कहते हैं? गेमिंग लॉ तो आई थिंक यंगस्टर्स वुड नो मोर देन मी, आई फील, क्योंकि काफी यंगस्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन गेमिंग दीज डेज. It's high up in the charts. It's a billions of dollars of industry now. So gaming law में again it's a potpourri of troubles. आप मनी लॉन्ड्रिंग के भी बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं गेमिंग साइट्स के थ्रू, राइट? टैक्सेशन इवेशन के बहुत सारे केसेस देख रहे हैं एंड दैट कम्स अप लेटर. But when you're even establishing, say, a gaming company, right? If you're coming up with something new or you're opening a new segment under your own group of companies, तो उसमें भी आपको corporate advisory देनी होती है, क्या compliances होते हैं, क्या करना होता है. So this is mostly for now, for me, it's complete advisory. Thankfully, none of them have gotten into any disputes, which is good news for me. So that's pretty much what gaming law is about. And when you say games, is it restricted to a particular kind of games? मतलब वो जो betting type games होते हैं वही है या थोड़ा और broader है? It's broader. जैसे इंडिया में like now that you have mentioned betting आप normally is illegal in India, right? लेकिन आप horse racing लेंगे तो that's उस पे betting करना is not illegal.
So again, that extends to different areas. So not equestrian actually, horse racing, equestrian, again, two different things. I will not mention that. Horse racing का भी आप एक गेमिंग इंडस्ट्री उसमें भी आप उसको शामिल कर सकते हो, because there are a lot of cross connections intertwined. It's quite intertwined. Yeah. अब जो आपने शिफ्ट किया लूथरा एंड लूथरा में, उसके बारे में भी थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि पहली बात तो क्यों कोई करना चाहेगा इस तरह का शिफ्ट? मतलब क्या फैक्टर्स होते हैं दिमाग में? बहुत लोग ये सोचते हैं लिटिगेशन में घुसने से पहले, मतलब जस्ट यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉ स्कूल एंड समबडी इज ट्राइंग टू स्केयर यू सेइंग कोई पैसा नहीं है लिटिगेशन में, कुछ नहीं। सो उसकी एक सांत्वना टाइप दी जाती है, अरे कोई बात नहीं, आप 7 साल 8 साल 10 साल इसमें निकाल लो, हमेशा लैटरल एंट्री हो सकती है फर्म में। क्यों, मतलब क्या रीजंस होते हैं और फ़र्क क्या है दोनों दुनियाओं में? क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क है या इतना कोई फ़र्क नहीं है, या क्या सीन है? फ्रैंकली मेरा रीज़न मे नॉट बी किसी और का रीज़न। मेरा रीज़न वाज़ वेरी सिंपल। मुझे मेरे पास एक लॉन्च पैड था पहले, जिसमें मे बी सिर्फ फाइटर जेट्स लैंड कर सकते थे और उड़ सकते थे। अब मेरे पास एक रनवे है जिसमें फाइटर प्लेन्स लैंड कर सकते हैं और उड़ सकते हैं, राइट? सो दैट्स द प्रीटी मच डिफरेंस फॉर मी। किसी और का भी कोई अलग रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, या स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हो सकते हैं बहुत लोगों के, राइट? विद कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ अर्ली इयर्स में ये डिसाइड करना, मैंने तो डिसाइड नहीं किया था ये कभी। ये दिस हैपेंड ग्रेजुअली फॉर मी। और ऑब्वियसली ऑलवेज ये ऑप्शन आपके पास फर्स्ट ईयर में भी है, आपके आपके पास 10 इयर्स में भी है, एंड नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग इवन अवे फ्रॉम लिटिगेशन से। ऐसा नहीं है कि आप एक बार डिस्प्यूट्स करने लगे तो आप कुछ और नहीं कर सकते, राइट? इट्स ऑल अप टू अस व्हाट वी वांट टू डू। So I wouldn't say restrict yourself and don't have strictures in your head कि यही करना है, यही स्ट्रक्चर है, ऐसे ही फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। So it happens a little more informally then. I am assuming कि I mean you just happen to speak to somebody at some event and then this possibility sort of starts brewing. इस तरह का है या is it more official, more streamlined? It's both. It's both. It can happen both ways. You know people in the industry जो शायद already किसी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे होंगे या किसी ऐसे कैंडिडेट को देख रहे होंगे जो उनको अपने फॉर्म में चाहिए, या आप एज अ कैंडिडेट यू आर लुकिंग आउट in the, you're talking to consultants, or you're talking more, going through more formal channels. So it's both ways. It's both ways. And so what's the difference in the two worlds? कि litigation की दुनिया में और इस firm की दुनिया में क्या main differences क्या है? मेन डिफरेंसेस इज, अगर आप बड़ी फर्म के साथ एसोसिएटेड हैं तो चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइंड ज़्यादा होती हैं आई थिंक, एंड उनका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, तो उनका रीच और नेटवर्क भी बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मे बी अगर आप किसी फर्म स्मॉलर चेम्बर में है तो उनका रीच शायद उतना बड़ा नहीं है, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु द चेम्बर इज और कौन है आपका बॉस एंड ऑल ऑफ दैट। Work wise, I don't think there's any difference. What is expected of you in a chamber is expected for you in a firm also. आपको उतनी ही मेहनत दोनों जगह पे ही करनी होगी, बस उतना ही डिफरेंस है। I personally have not seen any difference. Okay. And when you say what is expected of you etc. एक टीम का स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली ये तो आपने हाईलाइट कर ही दिया है कि जैसे छोटी फर्म है तो उसमें लोग ही कम है बिटवीन यू एंड द टॉप गाय। ऐसे ही फर्म में ज़्यादा लोग आ जाते हैं बीच में, हायरार्की बढ़ जाती है। उस हायरार्की का काम पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है? I think it depends on the person leading the team. अगर आपका लीडर, आपका मैनेजर आपको एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं, अगर वो आपको आपकी something, there's one concept that I follow, that if you don't have to always micromanage, right? If you think your team can handle it, please don't micromanage, right? But there are situations where the productivity is low and the enthusiasm is also low. Then what do? Then you have to micromanage. So it all depends on how you're leading the team, and then everything takes its own path. Yeah. Yeah. And any difference in the kinds of matters that you would otherwise expect in a smaller firm? Is it only the clients, that is there's now bigger clients in a bigger firm, or is it also the kinds of matters that certain kinds of matters will only come to a larger firm? Is it true? It has reduced considerably in the past few years.
पहले ये ट्रू होता था, मे बी व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन 2014 वो सिचुएशन शायद थोड़ी अलग थी, बिकॉज नाउ लॉट ऑफ फर्म्स आर कमिंग अप, लॉट ऑफ बुटीक फर्म्स आर आल्सो कमिंग अप, सो क्लाइंट्स हैव मच मोर ऑप्शंस, कंपटीशन भी बढ़ गया है मार्केट में, टैलेंट की कमी तो है नहीं। तो अब क्लाइंट्स ये नहीं सोचता है कि बड़ा नाम है तो उन्हीं के पास जाएंगे, क्लाइंट अब छोटे फर्म्स के पास भी जाने को तैयार है, देयर इज टैलेंट अवेलेबल। सो आई विल ऑनेस्टली आई हैव नॉट सीन दैट मच डिफरेंस। I have done high stake matters before also, and I'm doing that now also. So अब वो difference नहीं रह गया है. Understood. And when you hire somebody, both in your previous firms and now in Luthra and Luthra, you were obviously very new to Luthra and Luthra, but still, I mean, from what you see, किसी को हायर करते समय कंसिडरेशंस क्या होती, क्योंकि क्या है कि अगर कोई फ्रेशर है तो उसने कोई इतना एक्सपीरियंस तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर नहीं सकता। Correct. इंटर्नशिप्स दिखा सकता है 2-3, बट उस इंटर्नशिप के बेसिस पे भी कोई कितना ही जज करे। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, इफ द पीपल हु आर वाचिंग आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अ लॉ फर्म और अ स्मॉलर लॉ फर्म, बिगर लॉ फर्म, लिटिगेशन चेंबर, अकॉर्डिंग टू यू वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपने देखी हैं व्हिच हैव हेल्प्ड यू ग्रो, जिस पे आपको अप्रिसिएशन मिला है, या आप जिन लोगों को जानते हैं आपके कॉलीग्स वगैरह उनको अप्रिसिएशन मिला है, मतलब वो कौन सी थोड़ी 3-4 क्वालिटीज़ हैं जो इस प्रोफेशन में चाहिए? So I'll give you an example. I was new to a matter. This is some 6 years back, 5-6 years back, or more than back, I think, into the profession. I was new to a matter. This is a bulky arbitration matter. कोई टेंडर का मैटर था, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती है, 5-6 हज़ार पन्ने की डॉक्यूमेंट्स होती है, ऑलरेडी 2-3 लोगों ने उसमें काम कर रखा था, बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बन रखे हैं, लिस्ट ऑफ डेट्स, रिटन सबमिशंस, आर्ग्यूमेंट्स, एवरीथिंग इज रेडी, राइट? आई वॉज द फॉर द लूजिंग पार्टी, जिनको टेंडर नहीं मिला, और हम टेंडर चैलेंज कर रहे हैं, वेरी सिंपल। अब वो मैटर पता नहीं, ऑलरेडी आई थिंक 1 साल तो नहीं हुआ होगा, कुछ महीनों से चल रहा था। आई वेंट थ्रू द डॉक्यूमेंट्स फॉर 2 days, यू नो, अ वेरी सिंपल पॉइंट, जो जिसको टेंडर मिला था उसका इनकॉर्पोरेशन डेट वॉज लेटर देन द टेंडर डेट, ओह! राइट? हुँ। सिंपल केस ऑफ फ्रॉड, राइट? ये पॉइंट कहीं था ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं कभी। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? डिलीजेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आप डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लिए, आपने 100 पन्ने की लिस्ट ऑफ डेट्स तो बना लिए, लेकिन जो बेसिक चीजें आपको एनालाइज करनी थी वो आपने करी ही नहीं है। सो व्हाट आई लुक फॉर इन पीपल विथ सम एक्सपीरियंस इज अटेंशन टू डिटेल एंड अप्लाई योर ओन माइंड। डोंट बी अ यस मैन। मुझे नहीं सुनना कि मैं सही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ। अगर कोई और कुछ गलती करे, किसी ने कुछ मिस कर दिया, तो आप प्लीज उनको जाके बताइए, अपने बॉस को बताइए कि ये आप गलत कर रहे हो बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस, Maybe not in राइट? as many words, but Yes, maybe not in as many words, yes, but please do tell, because lawyers are always learning. कोई ऐसा वकील नहीं है जो बोलेगा मुझे सब आता है, बट एज अ फ्रेशर प्लीज बी डिसिप्लिन्ड। आपकी डिसिप्लिन, आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका डिलिजेंस विल गो far, will take you far ahead in life. That's one thing I have followed in life. When I was early in the profession, I used to open office, you know. I was the first one in office. I was the last one in to go from office. They had given me a key, thankfully. They're like, जब आना है आओ, जब जाना है जाओ. Sundays को मैं office खोलती थी, right? So I'm not saying do that. Obviously, have some life also. But law ऐसा profession है जहाँ आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी. There is no shortcut. correct. And what do you, because I think the newer generation and all generations, as they keep getting newer and newer, there's a lot of feeling that, we need a life, and there's a yearning for a balance, which is a fair yearning, but मुझे लगता है कि litigation में वो शायद available, Difficult है. हाँ, है ही नहीं आपके पास अवेलेबल। तो क्या इज इट ट्रू, मतलब ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप पहले 6-7 साल प्लीज बैलेंस के बारे में मत सोचो, बाद में सोचना कभी जब आपके पास एक बड़ी टीम हो जो आपके अंदर काम कर रही हो, इज दैट What I will say in a different way, people who can time manage better will have a life, right? Will have a balance of whatever they're looking for. I was not that great in time management, and that is why I had less of a balance, right? I'm still trying to get better at it.
बट आप टाइम मैनेजमेंट अगर कर लेना, तो अगर आपको पता है मुझे ये टास्क 15 मिनट में ही खत्म करना है या 1 दिन में ही खत्म करना है, तो प्लीज स्टिक टू इट। देन आपको फिर यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब जो लोग आते हैं फर्म्स के अंदर, what are some common mistakes that they made, or what are some common mistakes that you may have made as a fresher, or maybe 1 year 2 years into the profession, जो आप एडवाइस कर सकते हो कि ये एक अवॉइडेबल चीज़ है, इसको मत करो? I think I didn't do it, but I know a lot of people who came to work with me also have done. They don't ask for help, right? Out of shyness, बहुत लोग शाय होते हैं, बहुत लोग घबरा जाते हैं, which is right. It's okay कि आप घबरा रहे हो, बट आई थिंक आपको हेल्प मांगनी चाहिए। आप अपने बॉस से नहीं मांगना चाहते, मत मांगिए। आप अपने दोस्तों से मांग लीजिए, आप अपने सीनियर से मांग लीजिए, आप क्लर्क से मांग लीजिए, आप अजनबियों से मांग लीजिए, कोई ना कोई हेल्प कर देगा, बट आस्क फॉर हेल्प। क्योंकि बहुत बार, जैसे आई डोंट नो इफ इट हैज हैपेंड टू यू, बट मैं जब पहली बार कोड दी, फर्स्ट फ्यू टाइम्स इनफैक्ट, पता ही नहीं होता था कौन सी साइड खड़ा होना है, ये प्लेंटिफ का साइड कौन सा है, डिफेंडेंट का साइड कौन सा है। और इस एंजाइटी में मैं आधे घंटे कोर्ट में बैठी रहती थी कि मुझे तो पता ही नहीं है काम करना होना है। When I started practicing with my bosses, तो उस समय कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में यू कुड स्टैंड एनी साइड, ठीक है? तो मुझे यही आदत थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, साइड्स का कुछ नहीं होता। एंड देन दिस ओकेजनल हाई कोर्ट मैटर्स दैट दे हैड, तो मैं चला गया एक बार हाई कोर्ट में, गलत साइड खड़ा हो गया, तो जज मुझे कह रहे वेयर आर यू स्टैंडिंग? मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। That's exactly my advice. It's okay to be embarrassed. It's okay अगर जज आप पे चिल्ला रहे हैं, but that's a learning curve that you have to go through. Always ask for help is a great advice. And जस्ट थोड़ा सा स्टेप बैक करके एक मैक्रो लेवल व्यू ऑफ द प्रोफेशन लेके अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसे अनजस्ट एलिमेंट्स इन द प्रोफेशन जो आपको लगता है कि कमियां हैं प्रोफेशन में जो ठीक की जा सकती हैं, एंड विद टाइम सूनर द बेटर दे शुड बी क्योर्ड? Yes. You know, when I was deciding to go into disputes full time, this is 2 years or 1 year after graduation. One of my super seniors he's still a AOR now. तो मैं उनके पास गई थी पूछने के लिए कि सर थोड़ा एडवाइस दे दीजिए क्या करना है। उन्होंने मुझे डरा दिया। उन्होंने बोला, पहली बात तो तुम लड़की हो, ठीक है? तो तुमको वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। प्लस अगर इफ यू आर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, आप वेदर बी इट रिलीजन, वेदर बी इट योर स्टेट, वेदर बी इट योर कम्युनिटी और एनीथिंग, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। बट आई अप्रिशिएट हिम फॉर सेइंग दैट टू मी। अगर मुझे लगता है अगर जो नए जनरेशन्स होते हैं, अगर इनको ये फैक्ट चेक पहले ही पता चल गई ना, तो इट हेल्प्स यू बिल्ड योर मेंटल स्टैमिना। आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहते हो कि अच्छा मुझे पता ही आने वाली है लाइफ में, हाउ टू डील विद इट। आई नो कि डील तो करना ही है, हाउ टू डील विद इट यू विल लर्न, विल फिगर आउट, या राइट? सो देयर आर चैलेंजेस, आई विल नॉट से दैट इट्स अ इजी पाथ। एंड लाइक वी डिस्कस बिफोर, हर 6 महीने में यू क्वेश्चन योरसेल्फ कि हम कर क्या रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं। बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आई वुड से, यू नो, बड़ी मंजिल के मुसाफिर जो छोटा नहीं किया करते, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बिल्डिंग अ प्रैक्टिस, क्योंकि आपने सब किया है, आपने यू हैव वर्कड फॉर समबडी एल्स, मैनेज्ड अ टीम, डन मैटर्स इंडिपेंडेंटली, बट अपनी प्रैक्टिस जो बिल्ड कर रहा हो हाँ। उसके लिए एक जो वंस अगेन ट्रेडिशनल एडवाइस दी जाती है वो नेटवर्क करो, कि इस प्रोफेशन में अगर और कुछ नहीं है तो सिर्फ नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग किसे कहते हैं और वो कैसे होती है, ये मैं सबसे ही पूछता हूँ सारे गेस्ट से। सबके अलग अलग तरीके होते हैं नेटवर्किंग के। आप कैसे नेटवर्क करते हैं? आपने आज तक कैसे नेटवर्क किया? थोड़ा सा सोचने के बाद क्या आपको लगता है कि कौन से वो जगहें हैं जहाँ पे नेटवर्किंग होती है? मुझे लगता है योर रेपुटेशन फार एक्सीड्स योर पर्सन एज यू आर, राइट? तो अगर आपने एक रेपुटेशन बना ली है, नॉट नेसेसरली इन द प्रोफेशन, आप कॉलेज गए होंगे कहीं, आप स्कूल गए होंगे कहीं, आपके घर के आसपास कोई नेबर्स रहते होंगे, उन्होंने आपको शैतानियां करते हुए देखा होगा, या किसी ने आपको स्कूल में टॉपर बनते हुए देखा होगा, कॉलेज में आपकी हरकतों के सीक्रेट्स पता होंगे किसी को, राइट? सो ऑल ऑफ दिस बिल्ड्स अप विद टाइम। सो आपका जो रिलेशनशिप है, वेदर इट इज फ्रॉम 10 years बैक और 10 months बैक, दैट यू नीड टू बिल्ड ऑन, राइट? एंड नॉट नेसेसरली लॉयर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लॉयर से ही दोस्ती करनी है, आपको लॉयर से ही घुलना मिलना है, आप सबसे घुलिए मिलिए। दैट इज व्हाट नेटवर्किंग इज। नो एवरीथिंग,
it's said knowledge is power, right? So have knowledge of everything that is out there. So how that is essentially what my funda is also, and it comes very naturally to me. मेरे हमेशा से ही बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं एवर सिंस आई वाज यंग. माय पेरेंट्स कंप्लेन कि तुम बहुत दोस्ती यारी में लगी रहती हो. सो सो इट कम्स नेचुरली टू मी एंड आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों के लिए ये नेचुरल वे नहीं होता है, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. आप अपने कॉलेज से स्टार्ट करिए. इफ यू कांट स्टार्ट एनीवेयर एल्स, आप अपने दोस्तों से स्टार्ट करिए. आप उनसे पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, या फिर आप अपने सीनियर से पूछे, कॉलेज के सीनियर से, हाउ कैन आई बी ऑफ हेल्प, कुछ है तो आप मुझे बताइए, राइट? एंड वो नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. आप कलीग्स से पूछिए, आप सीनियर से पूछिए. दैट्स हाउ इट इज. आई डोंट थिंक देयर इज अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला टू इट. जब आप लोग फर्म्स में थे या मतलब इंडिपेंडेंट थे, तो दूसरे लॉयर्स के लिए जो आपसे सीनियर हो, आप ऐसे फ्रीलांस असाइनमेंट्स भी करते थे? कभी आपने किए? तो बहुत बारी होता है, ऑब्वियसली जो बड़े लॉयर्स होते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता है. उनके पास बहुत कम अमाउंट के भी मैटर्स आते हैं जो उनके लिए इतना वर्थवाइल नहीं होता होगा, लेकिन आपकी पॉकेट मनी के लिए इनफ है वो. तो आप ऑफर कर सकते हैं कि ठीक है, मुझे दे दीजिए, मैं ड्राफ्ट करके दे दूंगी या दे दूंगा, राइट? सो दैट वे एनीथिंग दैट कम्स योर वे यू टेक इट. एंड अगर वो उनका आपको काम पसंद आ गया तो मे बी ही विल गिव यू फॉर रियल अ वर्थवाइल मैटर. एंड ये वाले लोग जो आपकी लाइफ में थे, जो सीनियर्स थे, वंस अगेन ऑन रिफ्लेक्शन, ये लोग कैसे आपके टच में आए? मतलब ये थ्रू योर बॉसेस या कोई और तरीका था? Through friends and through my bosses both, right? So lovely friend circle. So they were quite helpful. जो उन्हें लगता था उन्हें नहीं करना है, they would pass it on, obviously. And similarly with my bosses, if they felt कि उनका plate already full है, बोलेंगे ठीक है, कुछ matters है, आपको चाहिए आप कर लो. And they would connect me with people who are otherwise also very helpful. इंडस्ट्री में काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं. आई वुड से दिस परसेप्शन अबाउट कोई किसी की मदद नहीं करता है यहाँ पे इज़ नॉट दैट ट्रू. ऑनेस्टली देयर आर पीपल हु यू विल फाइंड. समटाइम्स यू हैव टू लुक हार्डर, बट यू विल फाइंड. True that people say a lot about biding time. पहले 7 साल आप don't look for money, don't look for great arguing opportunities. मतलब जो भी आपको छोटा मोटा मिल रहा है, keep doing it. Bide time. Suddenly everybody will think कि भाई आप ही हैं ज्ञान के भंडार और आपके पास सारे केसेस आ गए. Is it true? Do you see any truth in it? मतलब biding time का क्या concept है? Biding time, not really. Invest in growth. इन्वेस्ट इन लर्निंग. बाइडिंग टाइम का मतलब तो ये हो गया आप कुछ नहीं कर रहे, वेट कर रहे, थिंग्स विल फॉलो इन योर प्लेस. इन्वेस्ट इन थिंग्स, इन्वेस्ट इन योर सर्कल, इन्वेस्ट इन नेटवर्किंग, इन्वेस्ट इन लर्निंग, इन्वेस्ट इन वर्किंग हार्डर, इम्प्रूविंग योर सेल्फ. अगर आपको लगता है आप कहीं पे लैकिंग है, बहुत लोग, हर कोई हर चीज़ नहीं सीख सकता है, सीख के आता भी नहीं है. ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में लैकिंग हो. मे बी आपको रिसर्च टूल्स नहीं आते हैं. आपको लोग अगर एससीसी ऑनलाइन की बातें करें, आपने कभी सुना ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, तो आप पूछ लीजिए किसी से कैसे करना है. किसी को बोल दीजिए मुझे प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे सिखा दीजिए कैसे करना है, राइट? बहुत लोगों की ड्राफ्टिंग कमज़ोर होती है. आप सीखिए उन लोगों से जिनकी अच्छी ड्राफ्टिंग है. आप सिर्फ ड्राफ्ट पढ़ के भी बता सकते हैं कि वाओ, इन्होंने तो कितना अच्छा ड्राफ्ट किया, इन्होंने क्या डिफरेंट किया है, राइट? सो बाइडिंग टाइम इज नॉट रियली सिटिंग आइडल. यू आर इन्वेस्टिंग इन योर ग्रोथ. सो यू नो बहुत बारी ऐसा लगता है कि हम बस वो एंड फिनिश लाइन के पास थे और हमने गिव अप कर दिया. तो वो आपको गिव अप नहीं करना है, वो फिनिश लाइन नहीं है. देयर इज नो फिनिश लाइन हियर. डोंट गिव अप एंड कीप एट इट, एंड देयर विल कम अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ऑल ऑफ दिस विल पे बैक इन सम फॉर्म और द अदर. ट्रस्ट मी ऑन दिस. अगर कोई आपको, आई रिमेंबर वन ऑफ माई फर्स्ट असाइनमेंट्स व्हेन आई वाज maybe 2 days into the profession. Okay, my boss was, I had made a list of dates and she was like, this is not how it's done. I was like, इसमें करने को ही क्या होता है, करेक्ट, इसमें होता ही क्या है करने के लिए. बट देन उन्होंने जब मुझे बताया, और टिल डेट आई प्रैक्टिस इट. सो एवरीथिंग यू आर लर्निंग. Can I just ask, क्या बताया? जैसे बेसिक पॉइंट्स, राइट? सो शी वाज लाइक, आप पहले तो अगर एनेक्सेस लिख रहे हो, ठीक है, पेज नंबर सो एंड सो आप लिख रहे हो, दैट इज इनफ. मोस्टली आप लिख के छोड़ देते हो. आपने यही नहीं बताया रिलेवेंट पेज कौन सा है, राइट? It's a 50-page document. डॉक्यूमेंट, हाँ, तो मैं 50 पेजों में जाऊँ काम पे, करेक्ट? सो दैट्स सब वेरी माइन्यूट थिंग्स जो आपको बाद में प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हेल्प आती है.
आपने ड्राफ्टिंग मेंशन की. व्हाट इज अ गुड ड्राफ्ट? थोड़ा ज़्यादा वेग क्वेश्चन है बट मैं कोई बात नहीं. व्हाट आर द क्वालिटीज, जैसे आपने बताया ना आप खुद भी पढ़ के बता पाओगे कि भाई ये कितना अच्छा ड्राफ्ट किया है. लोग क्या क्वालिटी है उस ड्राफ्ट की जो आपको लगेगा कि भाई इसने अच्छा ड्राफ्ट किया है? There's a, it's said that it takes longer to, it takes a shorter time to write a long paper, हाँ, राइट. but it takes a longer time to write a short paper. Yeah, correct. I think Mark Twain, I didn't have time to write you a Yes, a long, short. short letter. That's why I wrote you a longer letter. Exactly. So, what happens is when you're not thinking, you tend to write 30 pages. When you actually start thinking, you'll finish it in 3. Yeah. So, that's a mark of a very good draft when you can put it in a very crisp manner. Again, something which I learned from Dr. When I would initially go for briefings, and he would just be very irritated with longer notes. He would be like, "Why is this 3 page?" And then I realized what he means by it. Yeah. If it's crisp, it's clear. Correct. So that's essentially what I also look for in a draft. So be crisp, be clear, and be precise. And shorter sentences, please. Shorter sentences. One mistake I've seen a lot of people do is वो 3-4 सेंटेंस को एक सेंटेंस में लिखते हैं. प्लीज आप सेंटेंस ब्रेक करके फुल स्टॉप यूज करिए. And did you have any retainers? This is also a question I keep asking. Ki, one of the ways in which freshly independent lawyers will find some confidence कि मैं ऑफिस चला सकता हूँ या चला सकती हूँ is getting a retainer or a panel. ये दो कॉमन चीज़ें हैं. आपने दोनों को एक्सप्लोर किया? Did you ever have any retainer or a panel? I never had a panel. I don't think I tried for it also. मुझे लगता है panel work is very taxing and आपके पास अनादर स्टैमिना होना चाहिए पैनल करने के लिए. ठीक है, आई रियली बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव एंड प्रॉब्ली द मनी इज नॉट दैट ग्रेट. तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी, मेंटल डिवोशन भी उतना होना चाहिए कि नहीं मुझे तो करना ही है, प्लस द टाइम इट टेक्स. So that is why maybe I never focused on it as much. Retainers, I had a few, and it was not easy to come by. ऐसा नहीं है कि day one से I had retainers. With time आप पहले एक काम करेंगे, आप अपनी devotion और आप अपना काम दिखाएंगे कि आपका काम actually है कैसा, तभी आपको client trust करेगा and retainership देगा. So that is how it works. और किस तरह के clients retainers देते हैं? Is it always companies? Mostly I've seen it's companies. Unless there's some very big family dispute which is happening and, which is running into many years and it's a very high stake also, तब आपको retainer from a independent private individual मिल जाएगा, but mostly it's corporates. Mostly it's corporate. And you said that therefore you never tried for panels, but retainers आपके पास थे. How helpful do you think a retainer is for a person who's independent? It's a confidence booster. अगर आपको 10,000 भी मिल रहे हैं ना रिटेनर में, आपको लगता है वाओ समवन इज ट्रस्टिंग मी, सो इट्स अ कॉन्फिडेंस बूस्टर एंड ऑल्सो इट हेल्प्स यू टू पोर्ट्रे योर प्रोफाइल बेटर. कि मैं ऑलरेडी देखो एक लॉन्ग टर्म रिटेनर में हूँ किसी क्लाइंट के साथ, मतलब कुछ तो सही कर ही रहे होंगे हम. सो इट हेल्प्स यू पिच योर सेल्फ बेटर. जस्ट एक क्वेश्चन है जो मैं ऐड कर रहा हूँ अपने क्वेश्चनेयर में, जो ये है कि जो भी आप जिस भी फील्ड ऑफ लॉ में आप अभी काम कर रहे हैं और जिस भी तरह के क्लाइंट्स के साथ आप डील करते हैं, उनके साथ आपकी डीलिंग कैसी दिखती है? मतलब एक मतलब इफ़ यू वर टू पेंट अ पिक्चर कि यूजुअली टेम्पलेट ये होता है कि क्लाइंट कम्स और आई कॉल द क्लाइंट टू इन्फॉर्म दैट आपके केस में कोई गड़बड़ है जो भी, एंड देन और दे कम विद दिस बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट डोंट मेक सेंस. किस तरह होता है? जैसे एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बहुत अलग दिखेगा. समबडी विल कम एंड स्टार्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट व्हाटएवर यू आर डूइंग एट द मोमेंट, उसमें एक जनरल ट्रैजेक्टरी ऑफ केस क्या होती है? क्लाइंट आपके साथ आके क्या कॉन्वर्सेशन करता है? I would say two things. एक is sometimes they come with a business proposal in the sense like they tell you what their business vision is. वो आपको बताएंगे कि ये मेरा विजन है, ये मैं करना चाहता हूँ, आप प्लीज बताइए कैसे करना है. कैसे करना है इन द सेंस? कैसे करना है इन द सेंस, अभी लाइक यू हैव से इन गेमिंग इंडस्ट्री यू हैव अ विजन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू. आपको ऑनलाइन गेमिंग करनी है, आपको फैंटेसी गेमिंग करनी है, आपको रियल मनी गेमिंग में इन्वॉल्व होना है, जैसे भी जो भी है,
वो आपके पास आएंगे एक अपना बिजनेस आइडिया बताएंगे कि ये मैं करना चाहता हूँ, इज इट अलाउड, इज इट नॉट अलाउड, क्या कंप्लाइंस होंगे इसमें, क्या क्या अड़चने होंगी इसमें। तो ये हो गया आपका एडवाइजरी का पार्ट, राइट। सो दिस इज मोस्टली हाउ इट लुक्स लाइक। सिमिलरली विद कॉर्पोरेट्स, अब जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है जिन किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, so they will come up and say, this is the problem that I'm facing, this is how fast I want to get out of it, and my ultimate aim is this and this out of this. ये मेरे negotiables हैं, ये मेरे नॉन negotiables हैं, राइट। तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करोगे। क्लाइंट्स कभी डॉक्यूमेंट्स देने से मना भी करते हैं कि हम ये सब नहीं दे सकते? हाँ, ऐसा भी हुआ है कि क्लाइंट्स को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हम देंगे तो शायद विल कम अक्रॉस एज द बैड गाइज। बट बहुत ही एंशिएंट सेइंग है कि अपने वकीलों और डॉक्टरों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो आई सजेस्ट माय क्लाइंट्स, आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, बाकी हम देख लेंगे आगे कैसे क्या करना है। दैट इज ऑन मी वेदर टू यूज इट और नॉट। It's better that I know it from you than from the other side's lawyer in court. What are some common mistakes to avoid when you're handling clients? ये भी मतलब I suppose experience से ही आता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किस तरह की चीज़ें क्लाइंट्स को ज़रूर बतानी है, किस तरह की चीज़ें क्लाइंट्स को नहीं बोलनी चाहिए? मतलब ये क्या सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स? I read a book. I'm sure you have heard of it. It's called Hitchhiker's Guide to Galaxy. It's a wonderful book, one of my favorites. There's a dialogue in that where this one of the aliens, for people who don't know what the book is about, they say that nothing travels faster than light, with an exception of bad news. So please make sure that when you have a bad news for the client, you're the first one to tell it. दैट अगेन हेल्प्स बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट कि हाँ, मेरे वकील ने मुझे बता दिया है कि ये प्रॉब्लम हुई है या हो चुकी है, अब इसको ठीक कैसे करनी है, वो भी हैव अ सोल्यूशन इन माइंड। इफ नॉट नाउ, लुक फॉर अ सोल्यूशन, राइट। सो दैट्स अ मिस्टेक यू शुड डेफिनेटली अवॉइड। मैंने देखा बहुत सारे वकील, उनको लगता है कि क्लाइंट को बताने की क्या जरूरत है, हम खुद ही ठीक कर लेंगे, एंड देन समटाइम्स इट स्नोबॉल्स इनटू अ बिगर प्रॉब्लम। Sweet. And so this is one mistake. Don't hide the bad Bad news news, from your right. client. Okay, anything else that comes to mind? What other mistakes? I would say, as such, I wouldn't say there are mistakes. Strategy wise, आप शायद अपनी ही strategy आप बाद में बदल दो. You know, when you get wiser, you change your strategy sometimes, which is completely fine. But I would suggest run it by your client. ठीक है? It's ultimately about the client. It's not your matter. It's the client's matter, and it's between the client and the court. You have to have trust of both the client and the court. तो ऐसा आप कुछ मत बोलिए which will get you also in the trouble, या आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं which tries to you know have one over the judges also. ऐसे कोई nefarious ideas मत दीजिए कि हाँ, it gets you also professionally into trouble या client into trouble. So that is definitely a no go for any lawyer. Yeah. And if the client has some nefarious ideas, how do you shut Then it you down? distance yourself from the client. And sometimes, the client will come up with some idea or will say that, uh, I just need this outcome. Just tell me how to get this outcome or stuff like that. And it's a big client, you have that feeling कि भाई मैं how do I tell this client politely enough? It's a job of a lawyer. आपने गॉडफादर तो देखी ही होगी। नहीं मैंने नहीं नहीं देखी है? ओ माय गॉड, यू मस्ट। उसमें एक गॉडफादर के लॉयर होते हैं, पर्सनल लॉयर, टॉम हेगन। ओके, ही इज ऑलवेज दिस वॉइस ऑफ रीजन एंड लॉजिक इन द फैमिली। देर आर लॉट ऑफ मेंबर्स ऑफ द माफिया फैमिली, कुछ बहुत ही ऐसे आउटवर्डली अग्रेसिव भी होते हैं, एंड दे हैव दिस reactive responses to any incidents, right? So there has to be a voice of reason and logic. That is you to your client. ठीक है, अब वो चाहे कितने भी बड़े बड़े अजीब अजीब आइडियाज आपको दे दें, आपको ही उनको you have to pull them down and be like, boss, ऐसा नहीं हो सकता है, and for so and so reason. Don't just say कि ऐसा नहीं हो सकता. Give them a reason also. Then they'll be more willing to listen to you. And when you feel that the client maybe doesn't have a case, and they're not planning anything nefarious, लेकिन उनका जो case है वो बस कमजोर case है, how do you break it to the client? Do you just say it very bluntly, कुछ नहीं होगा इसमें? नहीं, it has never happened with me कि a client comes and I feel कि कोई केस नहीं है. क्लाइंट आपके पास आया है कोई ग्रीवेंस लेके, तो कुछ तो होगा, करेक्ट?
there's something that they are looking for. There must be some pain point somewhere which they're trying to rectify. तो ऐसा तो आई डोंट बिलीव कि कभी कोई भी क्लाइंट होगा जिसका कोई कभी केस हो ही नहीं सकता, राइट? इवन इफ देयर इज अ 1% चांस, देयर इज अ चांस. सो आई वुड से बी ऑनेस्ट इफ यू फील कि कम चांसेस हैं, बट टेल देम अपराइट कि ठीक है, ये है, दिस इज हाउ आई फील, एंड लेस चांसेस है. इफ यू वांट टू गिव इट अ शॉट, आई विल गिव इट माय 100%. You know, so that's pretty much it. And I was actually इससे याद आया जस्टिस नरीमन का एक बॉम्बे बार एसोसिएशन का लेक्चर है अभी रिसेंटली उन्होंने अपलोड, उसमें ही सेज द सेम थिंग. ही सेज नो केस इज इनआर्ग्यूएबल, ऐसा कोई केस नहीं होता. So very very nice. And is it beneficial to write the AOR exam? You mentioned आप AOR है, so is it good? Does it boost your practice? Does it bring in more clients, more matters, or is it not so? It depends on what you want to do. बहुत सारे सीनियर काउंसिल्स हैं, टॉप मोस्ट सीनियर काउंसिल्स इन द कंट्री, बहुत लोग उन लोग AOR नहीं है, ठीक है? तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये ज़रूरी है. ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है. अगर आपको कंपनी मैटर्स करने हैं, NCLT में आपको प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करनी है, तो आप AOR एग्ज़ाम देके अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, राइट? सो दैट इज़, इट्स एज़ सिंपल एज़ इट गेट्स. आई गिव AOR एग्ज़ाम, आई बिकेम एन AOR बिकॉज़ मुझे बनना था. Not because I thought it was a checklist that I had to tick off, right? So that's what I will advise people also. बहुत लोग बस इंक्वायरी करते रहते हैं कि भले ही वो दिल्ली में भी ना हो, हमें AOR एग्जाम देना है. आपको AOR एग्जाम देना ही क्यों है? आप जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वहाँ का प्रैक्टिस करिए, एंड यू डोंट हैव टू बिकम एन AOR टू प्रैक्टिस इन योर कोर्स. So it's not a necessity for you at all. You don't waste your time on that. But for you, was it beneficial professionally and financially and Yes, number of it friends? definitely was. I was practicing because of my ex-bosses in Supreme Court for a long time, right? So I had been wanting to practice in Supreme Court. तो मेरा एक sort of dream था AOR बनने का. तो of course it helps you if you're practicing in Supreme Court और आप बोलेंगे कि आप AOR हैं, तो client को भी trust आता है कि आपको कुछ तो आता ही होगा, right? And then they are willing to pay you also a decent amount of fee. So it helps. It helps. Hmm. And one last question is with regard to your previous workplaces and their role in your current position. अभी तो फिलहाल मतलब you just switched to a new workplace, but आपकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस बिल्ड करने में पिछली दोनों फर्म्स का और पिछले जितने भी आपने इलेक्शन कमीशन में किया हो, नालसा में किया, उनका क्या रोल है? मतलब is it, Tremendous. and why do you say that? I will always be grateful for whoever I have worked with. There's not a single boss that I would say has not been helpful. And not necessarily in terms of monetary. ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको मैटर ला के देगा. ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको सिखाएगा कि कोर्ट में क्या करना है, क्या नहीं करना है. बट सब कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे. ये आप गारंटी रख लो. ठीक है, कोई आपको उस लायक बना देगा कि आप ड्राफ्टिंग अच्छी कर सको, कोई आपको इस लायक बना देगा कि आप एक सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टीज कर सके, कोई आपको फ्रीडम देगा जो आपको सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हाउ दे हैव कंट्रीब्यूटेड, बट दे हैव कंट्रीब्यूटेड ट्रेमेंडसली. Thank you, Mona Lisa. This has been great, and I'm sure the audience will also take away a lot from it. Any concluding remarks? I would say for youngsters and young who are starting out and who are relatively younger in the profession, मंजिल मिलेगी भटक के ही राही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. क्या बात है. Thank you so much, Mona Lisa, and please do like, share, and subscribe, and leave a comment, and tell us what else do you want to know from our future guests, and we'll try and make that happen. Thank you so much for continuing with us so far. This has been 1 year of the podcast now, and it's all possible because of your love and support. Thank you, and see you in the next episode.